Hello, students. Very good morning to all of you. You are most welcome here in this video. This time we are reading the next part of democracy. Here you have to read the rule of law and respect for right. Now, here under this topic, you have to read the conditions, the political conditions of Zimbabwe attained Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980. At that time, in this country, the political party was JANU PF. JANU PF was the chief political party there that led to the freedom struggle, and the leader of this party, JANU PF, was Robert Mugabe. He was ruling in the country Zimbabwe since independence, and at that time the election was also won by this party JANU PF. At that time President Mugabe was very popular, but in the election he also uses unfair tricks. Over the years his government has changed the constitution several times to increase the powers of the president. और जैसे कि आपको उन्हें बताया था कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने रेफरेंडम ला करके और अपने लिए 5 इयर्स का एक्सटेंशन ले लिया था, सेम यही कंडीशन यहाँ पे JANU PF पार्टी के प्रेसिडेंट मुगाबे ने भी किया। उसने अपने लिए बहुत सारी अपने पक्ष में बहुत सारे मैटर्स को चेंज करा दिया कॉन्स्टिट्यूशन में जिम्बाब्वे के, और अपने खुद को वहाँ पे इस खुद की कंडीशन को काफ़ी वहाँ पे पावरफुल बना दिया। अपोजिशंस पार्टी वर्कर्स आर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टरप्टेड। किसी भी अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को वहाँ पे वैल्यू नहीं मिलता था, उसको हैरेस किया जाता था, उनको डिस्टर्ब किया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट का भी वहाँ पे कोई मतलब नहीं रह गया था, सब कुछ इलीगल साबित कर दिया गया था। टेलीविज़न और रेडियो वहाँ पे जो था वो सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड कर दिया गया था। मीन्स एट दैट टाइम ओनली देयर इन जिम्बाब्वे द रूलिंग पार्टीज विजन वाज टू कंट्रोल एवरीथिंग अंडर द गवर्नमेंट्स पॉलिसी। देयर आर ओनली इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, बट गवर्नमेंट हैड आल्सो pressurized to the journalist who goes against the party's JANU PF. मीन्स न्यूज़पेपर ही वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट था, लेकिन उसमें भी जो भी जर्नलिस्ट कुछ अलग लिखना चाहते थे उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ जाता था कि जर्नलिस्ट भी प्रेशर में आ जाते थे। एंड द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड हैज़ प्रेशराइज्ड जजेज। कोर्ट्स के आदेश को भी यह पार्टी नहीं मानती थी, जजेज भी वहाँ पे प्रेशर में आ गए थे। जिम्बाब्वे में अब जो मोस्ट पॉपुलर अप्रूवल था वहाँ पे नेसेसरी डेमोक्रेसी, वहाँ पे डेमोक्रेसी अब काफ़ी मस्ट हो गया था, लेकिन जो पॉपुलर गवर्नमेंट थी कैन नॉट बी अनडेमोक्रेटिक। पॉपुलर लीडर्स कैन बी एटोक्रेटिक, और जो पॉपुलर्स वहाँ के लीडर थे वो एटोक्रेटिक हो रहे थे, निरंकुश हो रहे थे, उनकी शासन में निरंकुशता आ रही थी। नाउ इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द election there should be sufficient room for normal political activity including political opposition। वहाँ पे जो नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो पॉलिटिकल अपोजिशन के साथ साथ इंक्लूड था, एक दूसरे से अटैच था। और इलेक्शन के जो पहले की जो पीरियड था वहाँ पे स्टेट को जो था, स्टेट को नागरिकों के राइट्स को लेकर के रिस्पेक्ट करना था, उनके स्टेट्स को नागरिकों के राइट को सुरक्षित रखना था। They should be free to think, to have opinions, to express these in public, to form association, to protest and take others political action. Everyone should be equal in the eyes of law. Or at that time it was a great demand in the country of Zimbabwe that they have to make the equal law for each and every people there. There should be equality, there should be equal rights to everyone. Judiciary whose orders are obeyed by everyone.
We shall read more about these rights in the next chapter. But here you see that some conditions that apply to the way a government is run after the election. A democratic governments cannot do whatever is like simply because it has won an election. It has to respect some guarantees to the minorities. Every major decision has to go through a series of consultation. Here you can understand that the government who is ruling in the country after the election, when the government gets power, it is the responsibility of that governments to see the respect, to see the value of the minority, and also provide them some guarantee in the field of security. But if the particular government doesn't do it, definitely that government is not capable to rule properly. Each of these accountable not only to the people but also to the other independent officials. We shall read more about this in chapter 5. Here the aspect give us the fourth and final feature of democracy. A democratic government rules within limits set by constitutional laws and citizens' rights. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है ये रूल्स करती है विद इन लिमिट्स के अंदर रह करके, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं, सिटीजन्स के जो राइट्स होते हैं, उन सबको ध्यान में रख करके और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को शासन करना पड़ता है। ऐसा डेमोक्रेसी में प्रावधान है। Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. I have explained you in the first video, on the first day. Today, you also get some basic points here on the base of this definition. We found that this definition was not adequate unless we explained some of the key words used in it. Through a series of examples, we worked out 4 features of democracy as a form of government. Accordingly, democracy is a form of government in which, अब यहाँ पे ये जो 4 पॉइंट्स को हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है, इस 4 पॉइंट्स के माध्यम से आप डेमोक्रेसी जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको कैसे हम शो करेंगे, कैसे इसको प्रूव करेंगे, यहाँ पर इस चीज़ का स्टडी हमें करना है। आप ध्यान से इस चीज़ को समझिए। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। लोगों के द्वारा जो रूलर्स इलेक्ट होते हैं, अर्थात जो सरकार बनाने के लिए जिनको हम इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, वे सारे मेजर डिसीजन लेते हैं। ये डेमोक्रेसी का पहला फीचर हुआ। नेक्स्ट, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर। करेंट टाइम में अगर जिस हम पार्टी की सरकार है, उस पार्टी की सरकार से अगर हम मीन्स पीपल्स अगर सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ द पीपल्स to change the government when there is free and fair election. Means it is our choice. It depends on our choice that we have to bring the governments again or we have to change it. Next है, this choice and opportunity is available to all the people on an equal basis. और जो choice और opportunity जो है, ये सबके लिए अवेलेबल है। यहाँ व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं है, सबके लिए अवेलेबल है और इक्वल बेसिस पर ये चीज़ें यहाँ पे है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। और जो एक्सरसाइज है वो गवर्नमेंट्स को लिमिटेड बेसिक रूल्स की तरफ लीड करती है, जिसमें लोगों के हक, लोगों के अधिकार की बातें भी होती हैं। अब यहाँ पे जो मैडम लिंगदो का बात ऊपर आई थी डिस्कशन में, उससे अगर हम थोड़ा सा हिंट लेंगे तो आपको कुछ डिस्कशन मिलेंगी, जहाँ पे टुडे वी हैव टू नाउ स्टार्ट द argument against democracy. Which type of arguments is against democracy and which type of arguments is in the favor of democracy. But here we have to have an argument that is against democracy. The conversation has most of the arguments that we routinely hear against democracy. Let us go over some of these arguments. Leaders keep changing in a democracy. This leads to instability.
जो लीडर्स होते हैं वो डेमोक्रेसी में चेंजिंग करते रहते हैं और ये इस इंस्टेबिलिटी को शो करता है। ये सबसे अगेंस्ट इसके डेमोक्रेसी है, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार हम लोग करते रहें जिससे कि नाते उनको ऊपर कोई आँच ना आए, उनके ऊपर कोई समस्या ना हो, और इसीलिए वहाँ पर इंस्टेबिलिटी होती है। फिर है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरलिटी। नो स्कोप फॉर मोरलिटी, इस डेमोक्रेसी में मोरलिटी के लिए कोई स्कोप नहीं है। एक बार गवर्नमेंट बन जाने के बाद जो पॉलिटिकल कंपटीशन है इसमें पावर प्ले किया जाता है। जो ताकतवर पार्टियां रहती हैं वो तोड़ मरोड़ कर अपने लिए सरकारें बनाती हैं और अपने अकॉर्डिंग फिर मेजर डिसीजन लेना स्टार्ट कर देती हैं। Democracy is all about political competition. Okay, so many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays. और बहुत से लोगों का एक राय भी कंसल्ट भी उन्होंने किया है कि डेमोक्रेसी में जो है इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले, ये डिले करता है डिसीजंस को लेने में, काम को, बड़े से बड़े काम को फॉरवर्ड करने में इसमें डिले होता है। डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन इतना इजीली नहीं लिया जाता है, उसमें बहुत समय लिया जाता है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। और एक बार हम जब इलेक्ट कर लेते हैं अपने लीडर्स को, तो लीड हो जाने के बाद, पद उनको मिल जाने के बाद, वे हमारे लोगों की, पीपल्स की क्या चॉइस है, पीपल्स की क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और फिर वो अपने अकॉर्डिंग जो है डिसीजन, बैड डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी एक डेमोक्रेसी के अगेंस्ट एक पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, ऑर्डिनरी पीपल, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। और यहाँ पे डेमोक्रेसी को आर्गुमेंट में जब आप जाएंगे अगेंस्ट में, तो यहाँ पर करप्शन माना गया है कि डेमोक्रेसी जो है करप्शन को लीड करती है, क्योंकि जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, इलेक्टोरल कंपटीशन में अनफेयर मीन्स को फॉलो किया जाता है, और जब अनफेयर मीन्स को फॉलो किया जाएगा तो वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन पॉसिबल नहीं रहेगा। Ordinary people don't know what is good for them. They should not decide anything. जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उन्हें नहीं मालूम रहता है, वो नहीं समझ पाते हैं कि क्या उनके लिए अच्छा रहता है, क्या वे अच्छी तरह से डिसाइड करें, इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। Are there some other arguments against democracy that you can think of? Which of these arguments applies mainly to democracy? Which of these can apply to misuse of any form of governments? Which of those do you agree with? Means these are the points, students, that is against democracy. These are the arguments that is against democracy, and now we have to read that some points that is for democracy, means that is in the favor of democracy, that is in the favor of democracy. तो फेवर ऑफ डेमोक्रेसी आपको हम बहुत से पॉइंट्स को बता चुके हैं। ये अगेंस्ट जो डेमोक्रेसी था, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, उस पॉइंट्स को यहाँ पे बताया गया स्टूडेंट्स। अब जो है कुछ वी हैव टू रीड द अदर रिलेटेड मैटर, बट इन द arguments against of democracy, it is also find that there is poverty also increased in democratic country, because the ruling party doesn't take a very strict and fast action, rapid action to start development. So it is also said that they increase poverty level also. Now arguments for democracy. China's famine. famines मतलब होता है इसमें ड्रॉट, सूखा। जो चाइना में बहुत बड़ी सूखा का टाइम आया था 1958 to 1961, वॉज द वर्स्ट रिकॉर्ड फैमिन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ये वर्ल्ड के हिस्ट्री में सबसे बड़ी ड्रॉट को माना जाता है, सबसे बड़ी नेचुरल डिजास्टर, सबसे बड़ी सूखा ग्रस्त साल को माना जाता है। और नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन, और इस
नेचुरल डिजास्टर में अबाउट 3 करोड़ पीपल्स डाइड इन दिस फेमिन। लगभग 3 करोड़ पीपल इसमें मारे गए थे। इस तरह की ये ड्रॉट उस समय का था। और ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर than चीन। इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वॉज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। मीन्स उस कंडीशन में इंडिया की भी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। एट इंडिया डिडंट हैव अ फैमिन ऑफ द काइंड चाइना हैड। और उसके बावजूद चाइना उतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद भी उस चीज़ पे पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन इंडिया उससे कम इकोनॉमिकल रूप से स्ट्रांग होते हुए भी इंडिया में उस तरह का कोई बड़ा ड्रॉट नहीं आया, कोई बड़ी डिजास्टर नहीं आई और इंडिया उससे इजीली अपने चीज़ को कंट्रोल कर लिया, उससे कम इकोनॉमिकल सिस्टम होने के बावजूद भी। एक डिफरेंस है कि एक डेमोक्रेसी के फेवर में, कि डेमोक्रेसी की ही देन है कि यहाँ पर लोगों को इस कदर से बचा लिया गया, जैसे कि चीन में लोग 3 करोड़ मारे गए, जबकि इंडिया में इस तरह की घटना होने से बचा लिया गया। ओके।